Good morning to all. How are you? I am fine. Myself Bobby Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, just we are going to cover some important questions and some different level questions for class 11 and the straight line chapter it is. Okay. So I think in the last lecture, it is the lecture number 11 from the straight line chapter, I think. And in the previous lecture, just we had discussed regarding the normal form of the straight line in the last part of the lecture. Okay. So you can see the lectures properly, then you will see that in the last part of this of that lecture that a new formation was discovered and was introduced also, and that is the normal form of the straight line. Okay, normal form, that means a perpendicular will be drawn from the origin to another line, okay, which is intercepted between the coordinate axis. That means एक लाइन होगा जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच ऐसे लाई करेगा और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर जाके उस लाइन को ऐसे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तब ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसको ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म में या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में. ओके, सो रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट एंड रिगार्डिंग दैट टॉपिक, just we are going to solve some important questions. Okay, so just write the first question. The length of the perpendicular from the origin. The length of the perpendicular from the origin. The length of the perpendicular from the origin to a line is 7. To a line is 7. To a line is 7. And the line makes an angle 150 degree. And this line makes an angle 150 degree with positive y axis. Okay, now the final question, find the equation of the line. Find the equation of the normal line. That means according to this question, according to the concept, as you all know, that a normal line, the normal form of a line means what? A line which is perpendicular to the another line which is intercepted between the coordinate axis. Okay, so here which line is actually this whatever the line is given in the question, just line equation is not given in the question, that you can see line equation is not given, but one thing is given, a line is there which is intercepted between the coordinate axis. This is the coordinate x axis, y axis, and this line intercepted between the coordinate axis, just like that. Okay, and the distance from the perpendicular distance from the origin to this line is 7. That means if you draw a figure, this is the x axis, y axis, and this is a line which is intercepted between the coordinate axis. It is x and it is y. Okay, now a line which is passing through the origin and perpendicular to this line. Okay, so O and this point is P, A and B. According to the question, this line makes an angle 150 degree with positive y axis. That means this angle is 150 degree. Right? Now you need to find the equation of OP. This OP equation needs to be found. Okay? Now according to this structure, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ तो 150 डिग्री एंगल तो है. ओके, अच्छा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं.
तो दैट मीन्स इसमें से ये एंगल अगर 150 है तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, राइट? ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी परपेंडिकुलर ही होगा, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, am I right? If this angle is 90 and this angle is 30, then what will be the angle of this? That means this part. 90, 30, 120. That means ये पार्ट हो जाएगा 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है, then obviously this angle will be, because the whole angle is 90. So this part is 60. So obviously this part is 30 degree. And according to the question, this perpendicular length is what? 7 unit. According to the question, this is given. You can see 7 unit. Length of the perpendicular is given. Okay, very complicated figure. Okay, so here the required line. Here the required. No need to write anything here directly because all the calculations, all the things is done. Okay, on the figure as well. Okay, so here the required line makes 30 degree angle with positive x axis and perpendicular distance from origin is 7 unit. So x cos alpha plus y sin alpha equals to p. So x cos 30 degree, y sin 30 degree equals to 7. That means x root 3 by 2 plus y half equals to 7. That means root 3x plus y equals to 14. This is the required straight line. Okay? Okay? Next question now. Find the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular. Find the equation of the straight line upon which. Find the equation. Next question लिखो. Find the equation of the straight line. Next question लिखो. Find the equation of the straight line, okay, upon which the length of perpendicular from the origin is 3 root 2, and this perpendicular makes an angle 75 degree with positive x-axis. Okay, now according to this question you will have to find the equation of the straight line, which is 3 root 2 unit away from the origin. That means the perpendicular distance of this line, which is intercepted between the axis, just like that, and the perpendicular distance from the origin, that means this portion is 3 root 2. It is given. Okay, and this perpendicular line which is passing through the origin, this line makes an angle, that means angle बनाता है. ये जो perpendicular line है ये angle बनाता है किसके साथ? x axis के साथ. ठीक है, कितना डिग्री? 75 डिग्री एंगल बनाता है. तो नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. सो ये नॉर्मल फॉर्म में करना है. ये आप कैसे समझेंगे? ये परपेंडिकुलर ओरिजिन, ये दोनों वर्ड आपको देखना है, परपेंडिकुलर और ओरिजिन. परपेंडिकुलर जो है
और ओरिजिन, ये दोनों वर्ड अगर यूज हो जाए तो आपको नॉर्मल फॉर्म यूज करना है. These are the keywords. Okay, just mark it out. Here, perpendicular distance P equals to what? 3√2 unit. Very good. Angle alpha equals to 75 degree. So, काम करते हैं. Cos alpha, that means cos 75 degree, that means cos 45 degree plus 30 degree. Cos A plus B. Cos A plus B, आप लोग को अभी तक ये फॉर्मूला नहीं मिला होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स का. ये जस्ट लिख के रखो, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. दिस फॉर्मूला इज फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ठीक है, ये लिख के रखो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. cos A cos B minus sin A sin B. This is the formula actually. Okay, so cos A cos B minus sin A sin B. That means cos 45, that means 1 by root 2. Cos 30 means root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2. That means root 3 minus 1 by 2 root 2. ये होता है cos 75 डिग्री का वैल्यू. Similarly, we can find sin 35 डिग्री, sin 75 डिग्री. तो उसके लिए अगर से यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लिख के रखो, sin A प्लस B, sin A, ये सब फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करेंगे. ओके, cos A ये कैसे आया है, कहां से आया है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट नाउ at present, just you should remember these things. Remember these two formulas. Okay, and when but the proper time will come, we will discuss it. Okay, with the proper definition and with proper steps. Okay, now sin now cos alpha is there. Now sin alpha, what will be the value of sin alpha? Just after this line, just this thing, sin alpha, that means sin 75 degree, that means sin, so the formula will be changed. Sin sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. That means 1 by root 2 root 3 by 2 plus 1 by root 2 1 by 2. That means root 3 plus 1 by 2 root 2. तो sin अल्फा का वैल्यू मिला, sin 75 डिग्री का वैल्यू मिला root 3 plus 1 by 2 root 2, और cos 75 डिग्री का वैल्यू मिला root 3 minus 1 by 2 root 2. So no, now the equation of the straight line. So the final equation of the straight line, final equation of, so equation of straight line नॉर्मल फॉर्म में ही करना है, ये तो श्योर है. x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p. p के जगह तो 3 रूट 2 बिठाना है, और x cos 75 डिग्री y sin 75 डिग्री. So x root 3 minus 1 by 2 root 2 plus y root 3 plus 1 by 2 root 2 equals to 3 root 2. Okay? Now root 3 minus 1 x plus root 3 plus 1 y equals to 3 root 2 into 2 root 2. So root 3 minus 1 x plus root 3 plus 1 into y equals to 6 12. So this is the final equation of the straight line. Okay, now I think you don't have any need to solve these things because it is the formation of the straight line. It is the standard form of a straight line. No need to rearrange these things. Okay, now next question. A line forms a triangle of area. A line forms a triangle
A line forms a triangle. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. A line forms a triangle. A line forms a triangle of area 54√3 square unit. Okay, with the coordinate axis, with the coordinate axis. Okay, with the coordinate axis, find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin. If the perpendicular drawn from the origin to the line makes an angle 60 degree with positive x-axis. So here, actually according to this question, one straight line is there which is lying between the coordinate axis, just like that. So after this, using this straight line, one triangle is constructed, as you can see. Okay, so it's a triangle is surfaced here. So here the area of this triangle is 54√3 is given. Okay, now if you draw a perpendicular line from the origin to this line, okay, and this length is P, as you all know, OP, and this is A, and okay, so perpendicular length is P, and this angle is 60 degree according to this question, 60 degree with positive x-axis. Okay, now what will be the equation of OP? OP लाइन का इक्वेशन यहां पर क्या होगा वो आपको निकालना है. So I think for if you want to find the equation of OP, this perpendicular distance, this perpendicular length should be found, because in the question the perpendicular length is not given. Angle is given, 60 degree is given, but the perpendicular length is not given, and for that we assume the perpendicular line, perpendicular length as P. So let us assume, हम लोगों ने एज्यूम किया है यहां पर, है कि नहीं? तो हम लोगों ने यहां पर लेट अस एज्यूम परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो इक्वल्स टू पी है. थोड़ा स्टाइल करके उसको ऐसे लिखो, पी यूनिट. ये हम लोगों ने पी ले लिया है क्योंकि इसका वैल्यू निकाला है. तो एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब टारगेट है पी का वैल्यू निकालना, है नहीं? अच्छा, यहां पर लिखो एरिया ऑफ ओ ए बी. ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन में गिवन है 54√3 स्क्वायर यूनिट. जो जो गिवन है वो हम लोगों ने लिख लिया है. अब हम लोग प्रोसीड करेंगे टू द फर्दर स्टेप. अच्छा, यहां पर देखो, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी दिस एंगल? 30 डिग्री, आई थिंक, बिकॉज द होल एंगल इज 90 डिग्री. तो यहां पर देखो, तो एक काम करते हैं, यहां पर फॉर ट्राइंगल ओ पी ए, ये तो परपेंडिकुलर है कि नहीं? ओपीए ट्राइंगल में जाते हैं, ठीक है. उसमें एरिया क्या निकलता है? ओपीए
ट्राइंगल में क्या निकलता है देखो तो। अच्छा यहां पर देखो फॉर ट्राइंगल ओपीए ट्राइंगल में एरिया ऑफ एनी, तो ओपीए ट्राइंगल में देखो ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो तो बेस कौन सा है, ये ऑब्वियसली बेस होगा क्योंकि एंगल तो इसके साथ है ना, ये बेस होगा और ये हाइट होगा, है कि नहीं। जिसके साथ एंगल इन्वॉल्व होता है वही तो बेस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये एंगल 60 डिग्री इसके साथ अटैच्ड है, 90 डिग्री भी इसके साथ अटैच्ड है, दैट मींस ये बेस होगा और ये हाइट होगा। सो दैट मींस यहां पर देखो तो साइन ये बेस, ठीक है ना, और ये हाइट, ठीक है। फॉर ओपीए cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ओपी है। सो दैट मींस cos 60 क्या होगा, हाफ इक्वल्स टू ओपी बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ओ ए, ठीक है। अब यहां पर देखो ओपी मतलब क्या होता है, ओपी मतलब यहां पर पी है, हम लोग ने एज्यूम किया है ओ ए, तो ओ ए इसका लेंथ क्या है 2p है ना, है कि नहीं। देखो ओपी का लेंथ क्या निकला, ओ ए का लेंथ 2p यूनिट, ठीक है। दैट मींस ये जो लेंथ है ये 2p यूनिट निकला, है कि नहीं, हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट और एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें देखो तो ये जो अनदर ट्राइंगल है फॉर ट्राइंगल OPB, इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल ऑब्वियसली ये बेस होगा, ओपी बेस होगा यहां पर, और हाइपोटेन्यूज यहां पर ये है, और ये होगा आपका हाइट, है नहीं। अच्छा तो ओपीबी ट्राइंगल में cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर बेस कौन सा है ओपी, बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ओबी। सो दैट मींस ये भी cos 30 मतलब cos 30 मतलब यहां पर होगा √3/2 इक्वल्स √3/2 इक्वल्स टू दैट मींस p बाय ओबी। सो यहां से OB इक्वल्स टू 2p बाय √3, ये मिला आपका OB का वैल्यू, दैट मींस OB का लेंथ और OA का लेंथ आपको मिल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये क्वेश्चन में गिवन है 54√3, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है ना। सो AOB ट्राइंगल दैट मींस हाफ इनटू बेस AOB मतलब ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल, OA इंटू OB इक्वल्स टू 54√3। तो OA का वैल्यू भी आपको पता है, OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू यहां पर 2p एंड OB का वैल्यू यहां पर क्या होगा 2p बाई √3 इक्वल्स टू 54√3। 2 कैंसिल और यहां पर देखो 2p² इक्वल्स टू 54 इंटू 3, तो ये 27, तो p² इक्वल्स टू 81, दैट मीन्स 9², p इक्वल्स टू 9, प्लस माइनस 9 यूज नहीं करेंगे क्योंकि -9 तो p तो लेंथ है ना, OP लेंथ है, लेंथ तो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए p ऑलवेज 9 ही होगा, है कि नहीं। सो इक्वेशन ऑफ OP, बस OP के इक्वेशन x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p, बस बिठा दो x cos 60 डिग्री क्योंकि 60 डिग्री है, देखो y sin 60 इक्वल्स टू 9, बस निकाल लो x इंटू हाफ y इंटू √3/2 इक्वल्स टू 9,
बस the final equation will, you have got the final equation here. So that means x plus root 3y equals to 18. This is the final equation of the straight line. Right? हो गया? Now next question. Next question लिखो. A straight canal is 4.5 miles from a place. A straight canal is 4.5 miles from a place and the shortest route from this place to the canal, and the shortest route from this place to the canal is exactly northeast. A village is 3 miles north and 4 miles east from the place. A village is 3 miles north. Village is 3 miles north and 4 miles east from the place. Okay. A village is 3 miles north and 4 miles east from the place. Does it lie by the nearest edge of the canal? Does it lie by the nearest edge of the canal? So very impressive question, is very important also. Okay, so a canal is there. Canal means आप लोग जानते हैं, कैनल एक है. ओके, तो ये कैनल का जो डिस्टेंस है, कैनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम वन प्लेस. ओके, ये 4.5 माइल है. 4.5 माइल ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम वन प्लेस. ठीक है. अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना, ईस्ट नॉर्थ ये सब है. तो एक काम कर लेते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो इस साइड में ऑब्वियसली नॉर्थ होता है और इस साइड में ईस्ट होता है, ये हम लोग जानते हैं. और ये जो पॉइंट ये ओरिजिन होता है, दैट मीन्स 0,0. ऐसे ही तो डायरेक्शन ऐसे तो निकालते हैं. तब है एक कैनल है जो नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये जो फ्रॉम दिस प्लेस नॉर्थ ईस्ट साइड में एक कैनल रखा हुआ है. दैट मीन्स कैनल है कि नहीं. नॉर्थ ईस्ट साइड मतलब कौन सा साइड होगा, ये साइड होगा.
है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट साइड मतलब कौन सा, ऐसा होगा ना। सो दैट मीन्स एक कैनल ऐसा है, ऐसे, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में लोकेटेड है कि नहीं? अब फ्रॉम दिस प्लेस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 4.5, दैट मीन्स 4.5 माइल। ये OP नाम दे दो, है कि नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक विलेज है कि नहीं? एक विलेज है, ये विलेज जो है फ्रॉम दिस प्लेस, इस प्लेस से 3 माइल्स नॉर्थ, 3 माइल्स नॉर्थ, ये 3 माइल्स नॉर्थ और 4 माइल्स ईस्ट में लोकेटेड है कि नहीं? क्वेश्चन है, डज इट लाई बाय द नॉर्थ बाय द नियरेस्ट एज ऑफ द कैनल? ये जो विलेज है ये क्या कैनल के ऊपर लाई करता है या कैनल के बाहर चला जाता है कि नहीं? ठीक है, ओके। डिपेंड्स, यहां पर एक विलेज है, अब नॉर्थ ईस्ट साइड में एक यहां पर एक पूरा ऐसे विलेज है। ये विलेज जो है 3 माइल्स नॉर्थ और 4 माइल्स ईस्ट के तरफ लोकेटेड है। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है, डज इट लाई, दैट मीन्स ये जो विलेज लोकेटेड है जिस जगह, ये कैनल का, ये जो कैनल है विलेज के ऊपर से जाता है या फिर विलेज के साइड से जाता है, वो आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स यहां पर एक विलेज है, यहां पर एक विलेज है, ये कैनल जो है ये के विलेज के ऊपर से जाएगा या फिर विलेज के बाहर से जाएगा, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो बोला है ना कि डज इट लाई बाय द नियरेस्ट एज ऑफ द कैनल, नियरेस्ट एज, दैट मीन्स नियरेस्ट एज कौन सा होता है? ये, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP, ये के विलेज के ऊपर लाई करता है या फिर विलेज के बाहर है? दैट मीन्स ये OP जो है ये लाइन का विलेज के ऊपर लाई करता है या फिर बाहर चला जाता है, वो आपको देखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर विलेज छोड़ो, यहाँ पर सबसे पहले OP लाइन का इक्वेशन निकालो, OP। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखो, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई भी चीज अगर एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स क्या होता है? एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है? मिडिल में है। एग्जैक्टली दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये 45, ये भी 45। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है? एक तो मिडिल में खड़ा हूं मैं, यहां से नॉर्थ और यहां से ईस्ट दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, है कि? दैट मीन्स मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब जाके एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ये मिडिल में है, तो बेसिक ये एंगल क्या होगा? हाफ होगा, 45 डिग्री होगा। तो यहां पर देखो, एंगल भी 45 डिग्री पता है, OP का लेंथ भी आपको पता है, तो लाइन का इक्वेशन निकालना क्या बराबर? हियर एंगल 45 डिग्री एंड P इक्वल्स टू 4 हाफ माइल। सो OP लाइन का इक्वेशन जो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। तो x cos अल्फा मीन्स 45, y sin 45 equals to P means 4 half. That means x by root 2, y by root 2, or equals to 9 by 2. So that means x plus y equals to 9 root 2 by 2. x plus y equals to 9 root 2 by 2. ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन मिला? ये OP का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब यहां पर एक विलेज ऐसे लोकेटेड है, ये पूरा एरिया एक विलेज है जिसका डिस्टेंस इस प्लेस से
4 माइल इधर है और 3 माइल इधर है। दैट मीन्स यहां पर एक विलेज है जिसका पोजीशन जो है वो 4,3 पॉइंट में है कि नहीं, देखो तो अगर कोई भी विलेज का पोजीशन ओके अगर 4 माइल्स ईस्ट है और 3 माइल्स नॉर्थ है तो उस विलेज का एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, 4,3 में है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं ये क्या 4,3 पॉइंट ये किसका पोजीशन है, विलेज का पोजीशन है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो विलेज है वो शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर, दैट मींस ये पाथ जो है विलेज के ऊपर है कि नहीं, वो आपको प्रूव करना है। सो दैट मींस अगर मैं यहां पर दिखा दूं कि 4,3 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ओपी, दैट मींस 4,3 पॉइंट मतलब क्या है, विलेज, विलेज लाई करता है? तो यहां पर अगर 4,3 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता ओपी को, दैट मींस क्या, लाई नहीं करता है। तो यहां पर एक चीज देख लेते हैं, 4,3 पॉइंट जो है वो ओपी लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मींस शॉर्टेस्ट, डज इट लाई इन द नियरेस्ट एज, नियरेस्ट बोला है ना, ये तो शॉर्टेस्ट है, नियरेस्ट मतलब ही तो शॉर्टेस्ट है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, दैट मींस ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये 4,3 होगा कि नहीं वो चेक कर रहे हैं हम लोग, नियरेस्ट एज के ऊपर ये 4,3 पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं। हियर 4,3 point is the village position. Okay, so चेक कर लेते हैं, x plus y equals to 9 रूट है कि नहीं, दैट मीन्स 4 plus 3, so एक काम करते हैं फ्रॉम 1, so from 1 4 plus 3 equals to 9 root 2 by 2, मतलब यहां पर 7 equals to 9 root 2 by 2, ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। सो दैट मीन्स 4,3 is not lying on OP, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है, सो आपको लिखना है, सो द विलेज doesn't lie on nearest edge। दैट मीन्स हम लोग यहां पर ये चेक कर रहे थे कि ये जो पॉइंट है, नियरेस्ट जो पोजीशन है, ओके कैंडल का सबसे नियरेस्ट पार्ट है, ये नियरेस्ट जो पॉइंट है ये क्या 4,3 पॉइंट होगा या नहीं, ठीक है। 4,3 पॉइंट मतलब किसका पोजीशन है, विलेज का पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो 4,3 पॉइंट है ये पॉइंट ये कैनल का जो शॉर्टेस्ट एज है, शॉर्टेस्ट पार्ट है, उसके ऊपर लाई करता है कि नहीं। तो हम लोगों ने ओपी लाइन के ऊपर भी, क्योंकि ओपी का इक्वेशन पता है हम लोग को, ओपी के ऊपर बिठा दिया। बिठाने के बाद अगर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता तो हम लोग बोलते कि नहीं 4,3 पॉइंट लाइंग ऑन ओपी, दैट मीन्स the village lie on the nearest edge, but here you can see the condition is not satisfying. So that means what this village doesn't lie on the nearest edge, that is the main thing. Okay, fair. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. Next देखो, find the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular. Find the equation of the straight line upon which length of perpendicular is
2 unit, 2 unit, and slope is 5/12. That means फिगर अगर ड्रॉ करें, ऐसा एक लाइन है, इसके ऊपर ये ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये ओ बी। तो ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो है एंगल गिवन नहीं है बट स्लोप गिवन है। तो हम लोग एंगल जो है थीटा ले लेते हैं। हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट, स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 है कि नहीं? तो यहां पर देखो, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली नॉर्मल फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया गया है, तो नॉर्मल फॉर्म ही यूज करना है आपको, है कि नहीं? सो दैट मीन्स हम लोगों को तो इक्वेशन फॉर्मेशन cos थीटा और sin थीटा ये दोनों निकालना है कि नहीं? तो निकाल लो। tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ sec स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा sec स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये शायद आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में मिला होगा क्लास 10 में, आइडेंटिटी फॉर्मूला होता ही sec square theta, that means 1 plus 5/12 whole square, that means 144 plus 25/144, that means 169/144. So that means sec theta equals to 13/12, प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं? So that means tan थीटा का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है ना, देखो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही केस होगा, है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता तो tan थीटा का वैल्यू यहां पर निगेटिव निकलता, है कि नहीं? सो दैट मींस ये प्लस माइनस के प्लस ही यूज करो। cos थीटा इक्वल्स क्या होगा? 12/13 होगा। cos थीटा का वैल्यू मिल गया, है कि नहीं? अगेन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी फॉर्मूला है। कहां से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लास 10 में मिला होगा ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में, है कि नहीं? तो यहां पर देखो 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, इट मींस 169 माइनस 144/169, that means 25/169, that means sin square theta equals to this, so that means 5 square by 13 square, तो sin theta मिल गया आपको 5/13, sin theta मिल गया, cos theta मिल गया, so equation of the straight line, so equation of the straight line, so equation of straight line equals to x cos theta plus y sin theta equals to p. That means x cos theta means 12/13, y 5/13 equals to p, that means 2. Okay, बस अब कैलकुलेशन कर लो। 12x plus 5y equals to 26, ये है आपका फाइनल straight line. This is the final equation of the straight line. Okay? तो इस टाइप का क्वेश्चन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? ठीक है? ओके, तो ये this normal or the perpendicular formation of the straight line is completed. Okay, so after that just we are going to finish the straight line chapter. 1 or 2 lectures I think are required for that. Okay, so but the main structure of the straight line is completed.
So I think all the questions will be common from the straight line chapters, and 1-2 lectures are left. Okay, so the more important questions will be done in that lectures. Okay, so enough for today. मिलते हैं next lecture में. Okay, so till then stay safe and stay healthy. Okay, bye and Jai Hind. If you like my lectures and if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Okay, so bye, Jai Hind.